السلام علیکم ناظرین، اس ایپیسوڈ کے شروعات میں ہم دیکھتے ہیں بازنطینی سپاہی بھاگتے ہوئے اپنے ہتھیار اٹھا رہے ہوتے ہیں اور ہان اپنے ساتھیوں کے ساتھ چھپ کے انہیں دیکھ رہا ہوتا ہے۔ کارا خلیل کہتا ہے حضور یہ قیدیوں کے تبادلے کی تیاری کر رہے ہیں، اور ہان کہتا ہے کرنے دو تیاری، ہمارے لیے ویسے بھی آسان نہیں ہے۔ سپاہیوں کے آگے بڑھ جانے کے بعد وہ ہتھیاروں والی جگہ آتے ہیں اور وہاں بچے ہوئے اکا دکا سپاہیوں کو مار گراتے ہیں۔ دوسری طرف سے بازنطینی سپاہی برہان کو لے کر آگے جا رہے ہوتے ہیں، ہاتھ اور پاؤں زنجیروں میں جکڑے ہوئے، چہرے پہ تشدد کے بدترین نشانات۔ آگے بڑھتے ہوئے ساروس فلاویوس سے کہتا ہے تو قیدیوں کے تبادلے کے دوران قرارگاہ پر حملہ یہ آج تک کے ان بہترین منصوبوں میں سے ہے جو میں نے سنے ہیں۔ فلاویوس کہتا ہے پھر بھی ہمیں محتاط رہنا ہوگا، اور ہان بورسا میں ہے، میں محسوس کر سکتا ہوں۔ ساروس کہتا ہے تو وہ گرا ہوا ہے، ہم اسے کبھی بھاگنے نہیں دیں گے، تم جاؤ، برہان کا معاملہ میں سنبھال لوں گا، میں تمہارے بابا کے قاتلوں کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ فلاویوس رکتے ہوئے کہتا ہے پھر بھی ایک چیز ہے جو مجھے معلوم کرنی ہے، سپاہیوں برہان کو لے کر آؤ۔ یہ سنتے ساتھ ہی سپاہی برہان کو اس کے پاس لے کر آتے ہیں۔ بائٹ جرکتائی بھی بازنطینی سپاہی لے کر بورسا کی جانب آ رہا ہوتا ہے۔ اندر فلاویوس برہان سے کہتا ہے برہان تم جلدی اپنے پیاروں سے ملو گے، لیکن پہلے میں تم سے ایک سوال پوچھوں گا اور تم مجھے سب کچھ سچ بتاؤ گے۔ میرے بابا کو تم نے کیسے مارا؟ برہان کہتا ہے دیکھو کماندار، میں نے پہلے بھی تمہیں یہ بتایا تھا، ہاں تمہارا باپ ہمارا دشمن تھا، لیکن وہ ایک بہادر آدمی تھا، عثمان صاحب نے خود خیمے میں اس کا علاج کیا تھا۔ ساروس ہنستے ہوئے کہتا ہے اچھا جھوٹ ہے، بہت اچھا جھوٹ ہے۔ فلاویوس تم کب تک کس کی بات سنو گے؟ فلاویوس برہان سے کہتا ہے جاری رکھو بولنا۔ برہان کہتا ہے جب ہم نے تمہارے بابا کو قیدی بنا لیا تھا، انہوں نے عثمان صاحب کے ساتھ اکیلے کھانا کھایا، مجھے وہ دن اچھی طرح یاد ہے، نہ کوئی شکار تھا اور نہ ہی باسی روٹی کا کوئی ٹکڑا، ہم نے ایک زخمی گھوڑے کو ذبح کر کے کھایا تھا۔ برہان جیسے جیسے بات آگے بڑھاتا ہے ساروس کی بے چینی بڑھتی جاتی ہے، مگر فلاویوس اسے ہاتھ کے اشارے سے روک دیتا ہے اور برہان سے پوچھتا ہے پھر؟ تو برہان کہتا ہے پھر حضور نے ایک خط لکھا اور تمہارے باپ کو دیا تاکہ وہ اسے شہنشاہ تک پہنچا سکے، اور اس کے بعد عثمان صاحب نے تمہارے باپ کو آزاد کر دیا۔ یہ سنتے ساتھ ہی ساروس برہان کے منہ پہ ایک زوردار تھپڑ دے مارتا ہے اور کہتا ہے بہت ہو گیا، بہت ہو گیا۔ پھر اسے دبوچتے ہوئے کہتا ہے تم نے میرے قریبی دوست کو مار ڈالا اور اب تم جھوٹ پہ جھوٹ بول رہے ہو، دیکھو اگر مجھے تمہاری ضرورت نہ ہوتی تو میں تمہیں یہی مار ڈالتا، کمینے کتے۔ یہ کہتے ساتھ وہ اسے دھکیل دیتا ہے۔ برہان کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے میں تھوڑی دیر بعد اپنے قبیلے پہنچ جاؤں گا، میں جھوٹ کیوں بولوں گا، کیوں؟ پھر برہان فلاویوس سے کہتا ہے فلاویوس اپنے فوجیوں کو بغور دیکھو، اپنی فوجیوں کو بغور دیکھو۔ یہ سنتے ساتھ ہی ساروس اسے دھکیلتا ہے اور سپاہیوں سے کہتا ہے لے جاؤ اسے یہاں سے۔ یہ سنتے ساتھ ہی سپاہی اسے لے جاتے ہیں اور فلاویوس اسے دیکھتے ہوئے سوچ میں پڑ جاتا ہے۔ ساروس فلاویوس سے کہتا ہے اپنے باپ اور بھائی کا انتقام لو، آج لشکرگاہ کو تہس نہس کر دو۔ یہ کہتے ساتھ ہی ساروس آگے بڑھتا ہے اور برہان کو لے کر قلعے سے باہر آتا ہے، جہاں پہ جرکتائی بازنطینی سپاہیوں کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ ساروس کے پیچھے ہی اس کے سپاہیوں میں اورہان اور اس کے ساتھی چھپے ہوتے ہیں۔ برہان کو زندہ دیکھ کر جرکتائی بہت خوش ہوتا ہے اور پوچھتا ہے بھائی کیا تم ٹھیک ہو؟ تو ساروس کہتا ہے ہاں یہ ٹھیک ہے، اتنا ٹھیک ہے جتنا پہلے کبھی نہیں تھا۔ برہان کہتا ہے تمہاری میزبانی ختم ہوئی، انشاءاللہ بہت جلد ہم اس شہر کو فتح کرنے کے بعد تمہاری مہمان نوازی کریں گے۔ جرکتائی ساروس سے کہتا ہے یہ رہے تمہارے طلب کرتا فوجی یہاں، اب میں یہاں کوئی مسئلہ نہیں چاہتا۔ ساروس کہتا ہے فکر نہ کرو، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، برہان کو رہا کرنے سے پہلے قیدیوں کو بھیج دو۔ پیچھے کھڑا اورہان سب کچھ بڑے غور سے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ جرکتائی کہتا ہے خبردار، ہمارے لیے کوئی جال بچھانے کی ہمت نہ کرنا ساروس، فوجیوں کو بھیج دو سپاہیوں۔ یہ سنتے ساتھ ہی سپاہی بازنطینی سپاہیوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اورہان کسی بھی صورتحال سے نمٹنے کے لیے اپنا تیر سیدھا کر لیتا ہے۔ ساروس سپاہیوں سے کہتا ہے برہان کو رہا کرو، تو سپاہی برہان کو جرکتائی کی جانب دھکیل دیتے ہیں، مگر اس سے پہلے کہ وہ جرکتائی تک پہنچتا ساروس تیر کھینچ لیتا ہے، مگر ساروس کے تیر چھوڑنے سے پہلے ہی اورہان کو چھوڑا ہوا تیر اس کی پیٹھ میں آ لگتا ہے۔ جرکتائی بھی برہان کو ڈھال کے ذریعے لے کر آگے بڑھتا ہے اور اورہان کافروں پہ ٹوٹ پڑتا ہے۔ اورہان کی دیکھا دیکھی سپاہی بھی اس کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں۔ ساروس چلاتے ہوئے اورہان 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 پکارتا ہے اور بھاگتا ہوا واپس قلعے میں گھس جاتا ہے۔ بھاگنے والوں کو بھی اورہان اور اس کے ساتھی جہنم واصل کر رہے ہوتے ہیں۔ برہان کو محفوظ کرنے کے بعد جب جرکتائی اورہان کو بھی قلعے سے باہر دیکھتا ہے تو بے انتہا خوش ہوتا ہے، وہ ایک دم برہان کے گلے لگ جاتا ہے۔ برہان کہتا ہے میں ٹھیک ہوں بھائی، میں ٹھیک ہوں۔ سب کا کام تمام کرنے کے بعد اورہان بھی برہان کے پاس آتا ہے اور اسے گلے ملتا ہے۔ جرکتائی بھی خوشی خوشی اسے گلے لگا لیتا ہے۔ ادھر قرارگاہ پر حملہ کرنے کے لیے تیار فلاویوس کہتا ہے دروازہ کھولو، آج کوئی رحم نہیں ہوگا۔
लश्करगाह में जो कोई भी है तलवार की गार्ड उतार दो। ये कहते साथ वो जंगी टोपी पहन लेता है और सिपाहियों के साथ सामने मौजूद करारगाह की जानिब घोड़ा दौड़ा देता है, मगर उनके करारगाह तक पहुंचने से पहले ही तुर्क सिपाही एकदम से तेल में आग लगा देते हैं। आग एकदम से फैल जाती है और फ्लावियोस का रास्ता रोक लिया जाता है। इसलिए में शहंशाह सिपाहियों के साथ सामने आता है और कहता है मैं भी तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। इसलिए में जेर कुतैब भी सिपाहियों के साथ वहाँ पहुँचता है और बुलंद आवाज से कहता है मैं खुशखबरी सुनाना चाहता हूँ, बुरहान साहब हमारे साथ हैं। यह सुन के फ्लावियोस को बहुत गुस्सा आता है। शहंशाह के हुक्म पर तीरंदाज तैयार हो जाते हैं और बाज़ंतीनियों पर तीर बरसाना शुरू कर देते हैं। वो आग से बचते हुए जैसे ही आगे निकलते हैं तो वहाँ पे सामने मौत से मिलते हैं। बहुत से आग में भी झुलस जाते हैं। एक तीर फ्लावियोस की टोपी में जा लगता है जिससे वो घोड़े से गिर जाता है। ये देखकर सिपाही भागते हुए आते हैं और उसे अपने हिसार में ले लेते हैं। अपनी फतह पे शहंशाह मुसलसल खुश हो रहा होता है। फ्लावियोस चिल्ला उठता है, फिर तीर बरसते हुए देखकर कहता है हम पीछे हट रहे हैं। शहंशाह के सिपाही मुसलसल तीर बरसाते ही चले जाते हैं और फ्लावियोस पीछे हटता हटता किले में जा घुसता है। ये देखकर औची शहंशाह के साथ हाथ मिलाते हुए कहता है हुजूर आपकी बदौलत हम बहुत बड़ी हजीमत से बच गए। फिर बुलंद आवाज से कहता है आज हर कोई गवाह है कि आप इस काम के लिए नाकाबिले शिकस्त और हकदार हैं शाहीन शाह साहब। दीगर सदरान भी शहंशाह को सलाम पेश करते हैं। अब्दुल्ला कहता है आप कैद होते तो शायद हमें पिछली शिकस्त ना होती। शहंशाह कहता है मेरे सरदारों मुहासरा महफूज है। इकदामात दुश्मन की हर चाल के खिलाफ हमारे ढाल हैं। हम साबित कदमी से आगे बढ़ेंगे। हम काफरों के इस शहर को अपना वतन बनाएंगे। इस पर सब इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह कहते हैं और औची शाहीन शाह साहब जिंदाबाद का नारा बुलंद करता है तो शाहीन शाह के हामी भी शाहीन शाह जिंदाबाद के नारे बुलंद करते हैं। कबीले में हलीमा नीलुफर के साथ आगे बढ़ते हुए कहती है जब मेरे बाबा खामोश हो जाएं तो कबीले के सभी लोग खामोश हो जाते हैं। जिन्होंने कल मेरे भाई के लिए तारीफी अशार कहे आज वही मेरे भाई की पीठ पीछे उन्हें बुरा भला कह रहे हैं। तो नीलुफर कहती है वो समझते हैं कि कोई भी शख्स बगैर जिम्मेदारी के कमजोर है, लेकिन फिक्र ना करो वो सब बुरहान की ताकत देखेंगे। हलीमा पूछती है और अलाउद्दीन के बारे में क्या ख्याल है, वो क्या करने की कोशिश कर रहा है। बुरहान भाई को अकेला छोड़ दिया। इसलिए में खादमा आकर कहती है हकीम मरीज का मुआयना करने के लिए खेमे से निकल गया है। नीलुफर हलीमा से कहती है वक्त आ गया है हलीमा, हम हकीम के खेमे में जाकर देखेंगे। अगर उसने कोई गलती की है तो जरूर उसने अपने पीछे कोई निशान छोड़ा होगा। ये कहते साथ ही वो हकीम के खेमे की जानिब बढ़ जाती हैं। उधर एक सिपाही तेजी से तैमूर ताज के पास आता है और खबर उसकी जानिब बढ़ाते हुए कहता है बुरसा से खबर आई है। तैमूर ताज कहता है ये वो वाहिद खबर है जो मुझे खुश कर सकती है। सारोज की जानिब से काइयों पर लगाई जाने वाली जोरदार जरब। मगर खबर पढ़ने के बाद तैमूर ताज गुस्से से लाल हो जाता है और खबर लाने वाले सिपाही पर ही टूट पड़ता है। फिर सामने रखा हुआ मेज पलट देता है। फिर कहता है फौरन बुरसा की जानिब खबर भेजो। सारोज और फ्लावियोस को फौरन यहाँ बुलाओ। हम इस जंग की तरतीब पर तबादला ख्याल करेंगे जो हम काई के खिलाफ हर तरफ से लड़ेंगे। फिर दूसरे सिपाही से कहता है कातिब को ले आओ। कबीले में नीलुफर हकीम के खेमे में दाखिल होती है और वहाँ छानबीन करने लग जाती है। वो वहाँ पड़े हुए दस्ताने देखकर उनकी जानिब बढ़ने ही लगती है कि बाहर से आवाज आती है हकीम अफंदी काम में आसानी हो। बाहर हलीमा हकीम से मजीद कहती है मेरी माँ आपसे कह रही है कि आज शाम फिर आकर मेरे बाबा का मुआयना करें। हलीमा की आवाज सुन के नीलुफर समझ जाती है और भागती हुई अलमारी में छुप जाती है। कुछ देर में ही हकीम वहाँ दाखिल होता है और कुछ लिखने लग जाता है। नीलुफर भी अलमारी से उसे देख रही होती है। खबर लिखने के बाद हकीम वहाँ छुपाए हुए कबूतर के पास जाता है और कबूतर लेकर खेमे से निकल जाता है। हकीम के जाते साथ ही नीलुफर बाहर आ जाती है जबकि हलीमा भी खेमे के अंदर आ जाती है और नीलुफर से कहती है वो खेमों से पीछे चला गया है, क्या मैं उसके पीछे जाऊँ? नीलुफर कहती है वो पैगाम भेजने जा रहा है, हमें मजीद कुछ करने की जरूरत नहीं, चलो जाकर मलून खातून को बताएंगे क्या हो रहा है। ये कहते और सुनते साथ ही वो दोनों खेमे से निकल जाती हैं। उधर तैमूर ताज तुर्क सरदारों की काजदू से कहता है चूंकि हम यहाँ मुआहिदा नहीं कर पाए, चूंकि हम वहाँ उन्हें जेर नहीं कर पाए, लिहाजा वक्त आ गया है कि कई जमीनों को खून में डुबो दिया जाए। तुम अपनी फौजें तैयार करो, हम तुम्हें मुसल्लह करेंगे, चलो जल्दी करो। ये सुनते साथ ही वो तीनों भाग जाते हैं। फिर तैमूर ताज बैठता है और सिपाही से कहता है लिखो अजीम अल खानी रियासत के अजीम खान को, जैसा कि आपने मुझे हुक्म दिया था मैंने उस्मान को बिस्तर पर लगा दिया है और हमने दूसरे सरदारान को अपने साथ इत्तेहाद करने पे मजबूर कर दिया है। मैंने कई कबीले को अपने पास बुलाया और उन्हें मुआवजा उठाने का हुक्म दिया, लेकिन उन्होंने सख्ती से इनकार कर दिया। फिर आगे बढ़ते हुए कहता है मैंने अपने यहाँ का फरीजा उस्मान को जहर देकर काई को बगैर सरबराह के छोड़ने से शुरू किया है और अगर जरूरत पड़ी तो मैं बाकी तमाम सरदारों से उन पे हमला करवा कर
सब के सर कलम करके अपना फर्ज खत्म करूंगा। सिपाही लिखने के बाद उस पर मोहर लगा देता है। इधर उरहान बुरहान को लेकर काई कबीले में दाखिल होता है। बुरहान को जिंदा देखकर काई कबीले के लोग बहुत खुश होते हैं। वो सब उसे पुरजोश अंदाज में खुशामदीद कहते हैं। घोड़े से उतरने के बाद उरहान बुरहान को सहारा देकर घोड़े से उतारता है और कहता है, हकीम को पहले अपना मुआयना करने दें। तो बुरहान कहता है, हम पुरानी मिट्टी के बने हैं हुजूर, हमें इतनी आसानी से कुछ नहीं होगा अल्लाह के हुक्म से। चले उस्मान साहब को इंतजार नहीं करवाते। ये कहते साथ वो उरहान के साथ सरदारी खेमे की जानिब बढ़ता है। अंदर सब कुछ जानने के बाद मलून खातून हलीमा और नीलोफर से कहती है, मैं इस पर यकीन नहीं कर सकती। ये हकीम 1 साल से हमारे साथ है। अल्लाह ना करे अगर वो कुछ करना चाहता तो क्या वो कत्ल ना कर देता। नीलोफर कहती है, वो हमारे सरदार की जान नहीं लेना चाहते। उनका मकसद इमारत के इत्तेहाद को तोड़ना, फितने को भड़काना और तफरका पैदा करना है। इसलिए मैं उरहान बुरहान को लेकर खेमे में दाखिल होता है। ये देखकर वो तीनों बहुत खुश होती हैं और आगे बढ़कर बुरहान से उसका हाल अहवाल पूछती हैं। बुरहान पूछता है, मेरे हुजूर कैसे हैं, क्या वो ठीक है? मलून खातून कहती हैं, अल्लाह का शुक्र है, जब वो तुम्हें देखेंगे तो मजीद बेहतर हो जाएंगे। हलीमा उरहान से कहती है, भाई आप हक जानिब थे, हकीम गद्दार निकला। नीलोफर कहती है, उसने एक कबूतर को अपने खेमे में छुपा रखा है गद्दार। हलीमा और मैंने उसका सुराग लगाया और उसे पैगाम भेजते हुए देखा। उरहान गुस्से से पूछता है, अब वो कहाँ है? तो नीलोफर कहती है, बाकी काम आप करेंगे, हमने इसलिए मुदाखलत नहीं की। बुरहान कहता है, उरहान चलो। मगर उरहान उसे कहता है, गद्दारी की कीमत यकीनन वसूल की जाएगी, लेकिन हमें पहले इससे फायदा उठाना चाहिए। हम उसकी मौत के लिए थोड़ा इंतजार करेंगे। मलून खातून खुश होते हुए नीलोफर से कहती हैं, माशाल्लाह, अल्लाह तुम्हारी कोशिशों में बरकत दे बहू खातून। फिर बुरहान से कहती हैं, तुम्हारे सरदार तुम्हारे इंतजार में हैं बुरहान। ये सुनते साथ ही उरहान बुरहान को लेकर उस्मान साहब के खेमे में दाखिल हो जाता है, जहाँ भी उस्मान साहब बिस्तर पे पड़े खांस रहे होते हैं। बुरहान उस्मान साहब को इस हालत में देखकर बहुत परेशान हो जाता है। उरहान कहता है, बाबा आंखें खोलें, देखें मैं आपके पास किसे लाया हूँ। मगर कोई जवाब नहीं मिलता तो बुरहान उस्मान साहब के पास बैठ जाता है और उनका हाथ पकड़ते हुए कहता है, हुजूर आंखें खोलें, मेरी तरफ देखें हुजूर, आंखें खोलें, आपका साथी आ गया है, आपका हमराज आ गया है, मुझे आपके मुबारक हाथ चूमने दें। ये कहते साथ ही वो उस्मान साहब के हाथ को चूमता है और बहुत गमगीन हो जाता है। कुछ देर के बाद उस्मान साहब हल्की हल्की आंखें खोलते हैं और बुरहान को देखकर उसे पुकारते हैं। तो बुरहान कहता है, बुरहान आपके रास्ते पे कुर्बान हो जाए हुजूर, मेरा उरहान सलामत रहे, हो गया और मुझे बचा लाया। मैंने दुनियावी आंखों से आपको एक बार फिर देख लिया, अब मौत मेरा क्या बिगाड़ सकती है हुजूर। उस्मान साहब उरहान की जानिब देखते हैं मगर कुछ नहीं बोलते और एकदम से निढाल हो जाते हैं। बुरहान के हाथ से उनका हाथ छूट जाता है। ये देख के बुरहान और उरहान हुजूर हुजूर बाबा बाबा पुकारते हैं मगर कोई हरकत नहीं होती। बुरहान कहता है, हुजूर कुर्बान जाऊं, ऐसा ना करें। उरहान भी मुसलसल बाबा बाबा पुकारता है और नाजरीन इसके साथ ये एपिसोड भी इख्तिताम पजीर होती है।